الجیریا، تیونس، لبنان، مصر، لیبیا، سعودی عرب، یمن، اردن، عراق، کویت، اسرائیل، فلسطین، ترکی، آذربائیجان، آرمینیا، جارجیا، یوکرین، رشیا، مالدووا، رومانیہ، بلغاریہ، یونان، کوسوو، البانیہ، سربیا، ہنگری، بوسنیا، نارتھ میسیڈونیا، سلوواکیہ، مونٹینیگرو اور ایران، ان سب علاقوں پر مشتمل ایک سلطنت جسے سلطنت عثمانیہ یا دی اوٹمن امپائر کہتے تھے۔ آج ہم اس سلطنت کی شروع کی 100 سالہ تاریخ کے بارے میں جانیں گے۔ 1299 میں موجودہ ترکی کے شمال مغربی علاقے جو اس وقت اناطولیہ کہلاتا تھا، اس میں یہ سلطنت قائم ہوئی۔ اس سلطنت کے پہلے بانی کا نام عثمان غازی تھا۔ عثمان غازی ایک خانہ بدوش قبیلے کا سردار تھا جس نے اپنے قبیلے کو وسیع کر کے اور جنگیں کر کے اس سلطنت کو قائم کیا۔ اس قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ سن 1317 میں بازنطین کے دارالحکومت قسطنطنیہ کے پاس ایک شہر تھا جسے بروسا کہتے ہیں۔ اس شہر پر عثمان نے حملہ کر کے اس کی گھیرا بندی کر لی۔ یہ جنگ 10 سال تک جاری رہی اور آخر میں عثمانی ترکوں کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ کے کچھ دنوں بعد عثمان کی وفات ہو گئی۔ اس کو اسی شہر میں دفنایا گیا۔ عثمان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اس کا جانشین ہوا۔ اس کا نام سلطان اورحان تھا۔ 14ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے علاوہ 2 اور سلطنتیں بھی قائم ہوئیں۔ ان سلطنتوں کا نام کراسی سلطنت اور کرمانیہ سلطنت ہے۔ سلطان اورحان نے سب سے پہلے اپنی ہمسائے سلطنت بازنٹائن امپائر کے ساتھ جنگ کی۔ اس میں اس نے بہت سے قلعے اور شہر فتح کیے۔ یہ جنگ 1 سال تک جاری رہی اور اس سب علاقے کو بہیما کہا جاتا ہے۔ سلطان اورحان نے اس سب علاقے کو بہت جلدی فتح کر لیا اور بہت آسانی سے، اور بازنٹائن امپائر کو ایشیا سے باہر نکال دیا۔ اس سب کے بعد بازنطینی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور 3 حصوں میں بانٹ گئی، ایک بازنطینی سلطنت، ایک بلغاریہ اور ایک سربیا۔ بازنطینی سلطنت کراسی سلطنت کی ایک مضبوط اتحادی تھی۔ بازنطینی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے سے کراسی سلطنت بھی کمزور ہو گئی۔ اس سب کا فائدہ سلطنت عثمانیہ نے اٹھایا اور جنگ کا اعلان کر دیا۔ کراسی سلطنت پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اس سب سے عثمانی ترک سمندر کے اس تنگ راستے تک پہنچ گئے جسے درہ دانیال کہتے ہیں۔ اناطولیہ میں ایشیا سے یورپ جانے کے لیے 2 ہی راستے تھے، ایک درہ دانیال اور ایک بازنطین کا سب سے مضبوط ترین قلعہ قسطنطنیہ۔ یہ وہ قلعہ تھا جسے عبور کرنا ناممکن تھا۔ اس وجہ سے عثمانی ترک صرف ایک ہی راستے سے جا سکتے تھے، وہ راستہ درہ دانیال تھا۔ عثمانی ترکوں کے لیے ایک خواب تھا کہ وہ ایشیا سے یورپ جائیں۔ یہ خواب ان کے بانی عثمان غازی نے دیکھا تھا اور اب وہ اس خواب کے کنارے پر تھے، مگر وہ یورپ جا نہیں سکتے تھے کیونکہ یورپ کی طاقتور فوج کی نسبت سلطنت عثمانیہ کی فوج بہت کمزور تھی۔ مگر بازنطینی شہنشاہ کوٹینس کے خلاف بغاوت ہو گئی اور اس لیے اس نے عثمانی ترکوں سے مدد مانگی۔ مگر سلطان اورحان نے ایک شرط رکھی کہ انہیں یورپ کے ایک علاقے نیلیپولی میں فوجی بیس بنانے دی جائے۔ بازنطینی شہنشاہ کو یہ فوج یورپ میں چاہیے تھی، اس وجہ سے وہ گیلیپولی میں فوجی بیس بنانے کے لیے رضامند ہو گئے۔ اس طرح عثمانی ترک بنا خون کا ایک قطرہ بہائے یورپ میں داخل ہو گئے، بے شک عارضی طور پر داخل ہوئے۔ سلطان اورحان نے اپنے بیٹے کے ہمراہ یہ فوج یورپ میں بھیجی تھی، مگر ان کے بیٹے نے یورپ میں پیش قدمی شروع کر دی اور بازنطین کے ایک علاقے تھریس پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس سے بازنطینی فوج بہت ڈر گئی۔ اس لیے بازنطینی شہنشاہ نے سلطان اورحان سے کہا کہ وہ اپنی فوج کو لے کر واپس سلطنت عثمانیہ میں آ جائے، مگر سلطان نے آنے سے انکار کر دیا اور پیش قدمی جاری رکھی۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ بازنطین کے مشرق میں بھی قائم ہوگی اور مغرب میں بھی قائم ہوگی۔ اس سب کے بعد سلطان اورحان کی وفات ہو گئی اور ان کا بیٹا مراد ثانی اگلا سلطان بنا۔ سلطان مراد ثانی نے یورپ میں پیش قدمی جاری رکھی اور تھریس پر قبضہ کرتے رہے۔ سلطان مراد ثانی نے گیلیپولی کے نزدیک ایک شہر جسے ایڈرین کہتے ہیں اسے فتح کر لیا اور اسے اپنی سلطنت کا نیا دارالحکومت بنا دیا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ترک قبائل نے بغاوت کر لی۔ یہ بغاوت بہت بڑی بغاوت تھی۔ اس سے سلطنت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی تھی، مگر سلطان مراد ثانی نے اس بغاوت کو کامیابی سے کچل دیا اور سلطنت عثمانیہ کو محفوظ بنا لیا۔ اس کے بعد سربین امپائر نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا۔
सर्बियन एम्पायर एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, मगर उस्मानी तुर्कों ने सर्बियन एम्पायर को शिकस्त दी और सर्बियन एम्पायर टुकड़े टुकड़े हो गया और इसके बहुत से इलाकों पर सल्तनत उस्मानिया ने कब्जा कर लिया। सुल्तान मुराद सानी ने इसी यूरोपीय हिस्से से एक नई फौज तैयार की जिसे जैनिसरीज कहते हैं। यह वो फौज थी जिसने 100 साल बाद कुस्तम दुनिया को भी फतह करना था। तो हम कहाँ थे? सुल्तान मुराद सानी ने सल्तनत उस्मानिया के यूरोपीय हिस्से से यानी बाल्कन पेनिनसुला से एक नई फौज तैयार की जिसे जैनिसरीज कहते हैं। इसके फ़ौरन बाद यूरोप में स्लेबी जंगों का ऐलान हो गया और सल्तनत उस्मानिया पर स्लेबियों ने हमला कर दिया। स्लेबी फ़ौजियों की तादाद 1 लाख से ज़ायद थी और सुल्तान मुराद सानी की फ़ौजियों की तादाद 1,05,000 थी। इसमें पहली बार जैनिसरीज फ़ौज को भी शामिल किया जिनकी तादाद 2,000 से ज़्यादा थी। सुल्तान मुराद सानी ने पहले स्लेबी फ़ौजियों पर हमला किया और इन्हें पीछे धकेलना शुरू कर दिया ताकि सुल्तान खुद अकेले रह गए और एक स्लेबी नाइट ने इन्हें आके शहीद कर दिया और जंग के दौरान ही स्लेबियों का कमांडर भी मारा गया। इस जंग में सुल्तान मुराद सानी का बेटा शहजादा यजीद भी शामिल था। इसने अपने बाप की मौत की खबर हमला करने के लिए सुल्तान यजीद ने अपनी फ़ौज भी मैदान जंग में उतार दी। ये जंग अनकरा के मकाम पर लड़ी गई, इसलिए इसे बैटल ऑफ अनकरा भी कहा जाता है। सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज की तादाद 1,20,000 थी और तैमूरी सल्तनत की फ़ौज 2.5 लाख से ज़ायद थी। तैमूरी सल्तनत की इतनी बड़ी फ़ौज के सामने सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज टिक ना सकी और सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज घेराव में आ गई और सल्तनत उस्मानिया शिकस्त खा गया। इस शिकस्त के बाद अमीर तैमूर ने सुल्तान यजीद सानी को कैद कर लिया और यजीद सानी कैद में ही वफात पा गए। इस जंग में सल्तनत उस्मानिया की 1 लाख फ़ौज मारी गई और 20,000 जिंदा बच सकी। इस जंग में शिकस्त की वजह से सल्तनत उस्मानिया को अपने बहुत से इलाके तैमूरी सल्तनत को देने पड़े। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के नए सुल्तान मुराद दोम बने। सुल्तान मुराद दोम ने सल्तनत उस्मानिया को संभाला और एक बार फिर जंग करके अपने तमाम इलाके दुश्मनों से वापस हासिल कर लिया। सुल्तान मुराद दोम ने यूरोप के एक इलाके अल्बानिया में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को आबाद किया और यहाँ आज भी मुसलमान आबादी में सबसे ज़्यादा हैं। सुल्तान मुराद दोम ने अपनी फ़ौज को ज़्यादा मुनज़्ज़म किया और इन्हें पहली बार बंदूकों का इस्तेमाल सिखाया। सुल्तान ने नई तोपें भी तैयार की जिससे वो कुस्तम दुनिया को फतह कर सके। 1451 में सुल्तान मुराद दोम की क़यादत में सल्तनत उस्मानिया ने कुस्तम दुनिया का मुहासरा कर लिया। यह मुहासरा 1 साल तक जारी रहा, मगर सुल्तान मुराद दोम इस छोटी सी बाज़ंतीनी सल्तनत के शहर कुस्तम दुनिया को फतह ना कर सके और वापस आ गए। सुल्तान मुराद दोम जंग हार कर वापस सल्तनत उस्मानिया आ गए और कुछ अरसे बाद वफ़ात फरमा गए। इनकी वफ़ात के बाद इनका बेटा शहजादा मोहम्मद सल्तनत उस्मानिया का अगला सुल्तान बना। लोग इन्हें सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के नाम से भी याद करते हैं। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने फ़ौज को और बेहतर बनाया और एक नई तोप तैयार की जिसे सुपर तोप कहा जाता है। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने अपनी हमसाई तमाम रियासतों के साथ अमन मुआहदे किए ताकि वो सल्तनत उस्मानिया पर कभी हमला ना कर सकें। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने 1473 में जंग का ऐलान कर दिया और बाज़ंतीन पर चढ़ाई कर दी। किसी भी फ़ौज को कुस्तम दुनिया फतह करने के लिए 2 माह दरकार होते हैं, मार्च और अप्रैल। इसके बाद सिर्फ कोई बड़ी फ़ौज ही 1 माह टिक सकती है।
مارچ اور اپریل بہار کا موسم ہوتا ہے۔ سردیوں میں قسطم دنیا میں شدید سردی پڑتی ہے اور گرمیوں میں یہاں شدید گرمی پڑتی ہے، اس لیے کوئی بھی فوج قسطم دنیا کو سردی اور گرمی میں فتح نہیں کر سکتی۔ اس لیے سلطان محمد فاتح نے جنگ کرنے کے لیے بہار کا موسم منتخب کیا۔ سلطان محمد فاتح اپنے دارالحکومت ایڈرن سے 1 مارچ 1473 میں نکلے۔ ان کے ساتھ 1,75,000 کی فوج تھی اور 200 بحری جہاز بھی تھے۔ 10 مارچ 1473 میں سلطان محمد فاتح نے قسطم دنیا کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان محمد فاتح کی اتنی بڑی فوج کے سامنے قسطم دنیا کے صرف 18,000 سپاہی تھے اور 13 توپیں تھیں، اور قسطم دنیا کے پاس صرف 12 بحری جنگی جہاز تھے۔ سلطان محمد فاتح نے مارچ اور اپریل 2 مہینے قسطم دنیا کا محاصرہ کیا مگر فتح حاصل نہ کر سکے۔ سلطان محمد فاتح نے کہا کہ اب ہم قسطم دنیا پر آخری حملہ کریں گے، اگر فتح حاصل ہوئی تو ٹھیک، نہیں تو سلطنت عثمانیہ واپس چلے جائیں گے۔ سلطان محمد فاتح نے 23 مئی رات 12 بجے اپنے سارے لشکر کو حکم دیا کہ وہ قسطم دنیا کی دیواروں پر حملہ کر دیں۔ ساری رات یہ لڑائی چلتی رہی اور آخر میں عثمانی ترکوں کو یہ فتح حاصل ہوئی۔ 31 مئی 1473 کو قسطم دنیا ہمیشہ کے لیے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ جب سلطنت عثمانیہ نے قسطم دنیا کو فتح کیا تو قسطم دنیا مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطم دنیا کا نام بدل کر استنبول رکھ دیا اور اپنے دارالحکومت ایڈرن کو یہاں منتقل کر دیا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطم دنیا کو دوبارہ آباد کیا اور پورے سلطنت عثمانیہ سے مسلمانوں کو لا کر یہاں آباد کیا۔ 14 سن 81 میں سلطان محمد فاتح، جنہوں نے قسطم دنیا کو فتح کیا تھا اور اس کا نام بعد میں استنبول رکھ دیا تھا، وفات فرما گئے۔ تو ہم کہاں تھے؟ سلطنت عثمانیہ نے قسطم دنیا کو فتح کر لیا اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح نے قسطم دنیا کا نام بدل کے استنبول رکھ دیا اور اسے دوبارہ آباد کیا۔ قسطم دنیا کی فتح کے بعد سلطان محمد فاتح وفات پا گئے۔ جب سلطان محمد فاتح کی وفات ہوئی اس وقت سلطنت عثمانیہ دنیا کی سپر پاور تھی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا شہزادہ بایزید سلطنت عثمانیہ کا اگلا سلطان بنا، مگر سلطان بایزید ایک کمزور سلطان ثابت ہوئے، مگر ان کے بھائی شہزادہ جم نے انہیں سلطان ماننے سے انکار کر دیا، مگر شہزادہ جم جانیسری فوج کے سامنے ٹک نہ سکا اور جنگ میں ہار گیا۔ اس جنگ میں شکست کی وجہ سے شہزادہ جم کو سلطنت عثمانیہ کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ شہزادہ جم نے سب سے پہلے مصر کی مملوک سلطنت میں پناہ لی، اس کے بعد سلیبی نائٹس کے جزیرے دہاؤز میں چلے گئے، وہاں سلیبیوں نے ان کی بہت زیادہ مدد کی، مگر سلطان بایزید ثانی نے سلیبی نائٹس کے ساتھ معاہدہ کر کے شہزادہ جم کو ہلاک کروا دیا۔ شہزادہ جم کی بغاوت تو ختم ہوگی مگر سلطنت عثمانیہ میں بغاوتوں کا سلسلہ ختم نہ ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کے ہمسائے میں صفوی سلطنت بہت طاقتور ہو چکی تھی۔ یہ ایک شیعہ مسلم سلطنت تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے شیعہ افراد یہ چاہتے تھے کہ صفوی سلطنت عثمانیہ پر کنٹرول حاصل کر لے، اس لیے صفوی سلطنت نے سلطنت عثمانیہ میں بہت سی بغاوتیں کروائیں، مگر جانیسری فوج نے ان تمام بغاوتوں کو کچل ڈالا۔ ان تمام واقعات کے بعد جانیسری فوج یہ جان چکی تھی کہ سلطان بایزید ثانی ایک کمزور سلطان ہے اور تخت پر ایک طاقتور سلطان کو بیٹھنا چاہیے، اس لیے جانیسری فوج نے بغاوت کر لی اور سلطان بایزید ثانی کو تخت سے بے-دخل کر دیا اور ان کے بیٹے شہزادہ سلیم یاوش کو اگلا سلطان بنایا۔ تخت سے بے دخل ہونے سے پہلے سلطان بایزید ثانی نے ایک بہت بڑی غلطی کی، انہوں نے پرنٹنگ پریس کو سلطنت عثمانیہ میں بین کر دیا، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ پڑھائی لکھائی کے معاملے میں پورے یورپ سے پیچھے رہ گئی۔ جب شہزادہ سلیم یاوش نے تخت سنبھالا تو انہوں نے سب سے پہلے صفوی سلطنت سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا اور جنگ کا اعلان کر دیا۔ سلطان سلیم یاوش نے 1.5 لاکھ کا لشکر لے کر صفوی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ صفوی سلطنت کی فوج کی تعداد تقریباً 1,05,000 تھی۔ دونوں فوجیں جلدران کے مقام پر آمنے سامنے ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ کی فوج کے توپ خانے نے صفوی سلطنت کی صفیں اکھیڑ کے رکھ دی۔ سلطنت عثمانیہ کی فوجیں صفوی سلطنت کے دارالحکومت تبریز تک آ گئی، مگر سلطان سلیم یاوش نے صفوی سلطنت کو فتح نہیں کیا اور جنگ بندی کا اعلان کر کے واپس سلطنت عثمانیہ آ گئے، کیونکہ صفوی سلطنت پہاڑوں اور ریگستانوں پر مشتمل تھی۔ ایک بڑی فوج کے لیے پانی اور خوراک ڈھونڈنا بہت مشکل تھا، اس سے فوج میں بغاوت بھی ہو سکتی تھی۔ پیدل میلوں کا سفر کرنا اور صفوی سلطنت پر قبضہ کرنا، وہ بھی کسی پانی اور خوراک کے بغیر، سلطنت عثمانیہ کے لیے ناممکن تھا۔
जब सुल्तान सलीम अपनी फ़ौज के साथ सफ़ी सल्तनत से निकलकर सल्तनत उस्मानिया आया तो इसे एक पैगाम मिला। यह पैगाम ममलूक सल्तनत के बागी सरदारों ने भेजा था। इसमें सल्तनत उस्मानिया को ममलूक सल्तनत पर हमला करने की दावत दी गई। सुल्तान सलीम याउश ने इस मौके को गनीमत जाना और अपनी फ़ौज को तैयार किया, क्योंकि ममलूक सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी। इसके अलावा ममलूक सल्तनत अभी भी तलवारों के साथ लड़ती थी और सल्तनत उस्मानिया बंदूकों तोपों के साथ लड़ती थी। और सुल्तान सलीम याउश भी चाहते थे कि सभी सल्तनत के अलावा किसी और सल्तनत में जंग की जाए जहां पहाड़ रेगिस्तान ना हो। ममलूक सल्तनत में पहाड़ रेगिस्तान नहीं थे, बल्कि पानी के वसीअ ज़खायर थे। ममलूक सल्तनत और सल्तनत उस्मानिया की फ़ौजें शाम के शहर हलब से 50 किलोमीटर दूर मरवाज के इलाके में आमने सामने हुई। सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज की तादाद तकरीबन 2.5 लाख थी और ममलूक सल्तनत की फ़ौज की तादाद तकरीबन 70,000 थी। सल्तनत उस्मानिया की फ़ौजों ने ममलूक सल्तनत की फ़ौजों को तबाह कर दिया और ममलूक खलीफा को भी मार दिया। बाकी फ़ौज अपने दारुल हुकूमत वापस चलेगी। सुल्तान सलीम याउश ने शाम, फ़लस्तीन, उर्दन को फ़तह कर लिया। जब वो मिस्र पहुंचा तो वहाँ कोई फ़ौज नहीं थी। मिस्र उसके लिए मुकम्मल तौर पर खाली था, क्योंकि ममलूक सल्तनत के नए खलीफा ने सारी फ़ौज अपने दारुल हुकूमत काहिरा में बुला ली और वहाँ एक मजबूत दिफा तैयार कर लिया। सल्तनत उस्मानिया को रोकने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ी खंदक भी खोदी, जिसे अबूर करना नामुमकिन था, मगर सुल्तान सलीम याउश ने इस खंदक को भी अबूर कर दिया। अब दोनों फ़ौजें काहिरा के मुकाम पर आमने सामने हुई। सल्तनत उस्मानिया ने ममलूक सल्तनत पर तोपें तान दी। सल्तनत उस्मानिया ने ममलूकों पर शदीद बमबारी की और इनकी सफ़ें उखेड़ के रख दी। सुल्तान सलीम याउश ने ममलूक फ़ौज को शिकस्त दी और काहिरा की तमाम आवाम को ख़त्म कर दिया। सुल्तान सलीम याउश ने काहिरा में लाखों मुसलमानों को शहीद कर दिया। इस तरह सल्तनत उस्मानिया ने ममलूक सल्तनत को 250 साल बाद सफ़ाए हस्ती से ख़त्म कर दिया। अब पूरी ममलूक सल्तनत सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन चुकी थी। इनमें शाम, फ़लस्तीन, मिस्र, लिबनान वगैरह शामिल है। मक्का और मदीना ममलूक सल्तनत का हिस्सा थे। सल्तनत उस्मानिया ने इन दोनों को फ़तह करने के लिए भी फ़ौज भेजी, मगर मक्का और मदीना के हरीमैन शरीफैन ने जंग किए बगैर मक्का और मदीना को सल्तनत उस्मानिया के हवाले कर दिया। खिलाफत क्योंकि ममलूक सल्तनत के पास थी, ममलूक सल्तनत ख़त्म हो गई तो खिलाफत भी सल्तनत उस्मानिया के पास चलेगी। अब सल्तनत उस्मानिया के तमाम सुल्तानों को खलीफा कह के मुखातब किया जाता था और सबसे पहले खलीफा का लक़ब सुल्तान सलीम याउश ने इख्तियार किया, जिसे खलीफा सुल्तान सलीम याउश कहते हैं। इस तरह सल्तनत उस्मानिया का रकबा दुगना हो गया और सल्तनत उस्मानिया 3 बड़े-ए-आज़मों तक फैल गई, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। इस जंग के बाद खलीफा सलीम याउश चंद साल ही जिंदा रहे और वफ़ात पा गए। तो हम कहाँ थे? सल्तनत उस्मानिया ने ममलूक सल्तनत पर हमला किया और ममलूक सल्तनत पर कब्ज़ा कर लिया। जब सल्तनत उस्मानिया ने ममलूक सल्तनत पर कब्ज़ा किया तो खिलाफत ममलूक सल्तनत के पास थी। इस जंग में हार की वजह से खिलाफत भी सल्तनत उस्मानिया के पास चलेगी और सल्तनत उस्मानिया के इख्तिताम तक खिलाफत इनके पास रही। इस जंग के कुछ ही अर्से बाद सुल्तान सलीम याउश वफ़ात पा गए। इनकी वफ़ात के बाद इनका बेटा शहज़ादा सुलेमान, जिन्हें लोग सुलेमान खान अल क़ानूनी के नाम से याद करते हैं, अगले खलीफा बने। खलीफा बनते ही आपने सबसे पहले अपनी सल्तनत में अमन कायम किया। इसके बाद खलीफा सुलेमान खान ने बलगरात पर हमला कर दिया। इस जंग में सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज की तादाद तकरीबन 70,000 थी और बलगरात की फ़ौज की तादाद 20,000 थी। इस जंग में जानिसरीज़ भी शामिल हुए। खलीफा सुल्तान सुलेमान खान ने बलगरात पर कब्ज़ा कर लिया और सल्तनत उस्मानिया वापस आ गए। इस जंग के कुछ ही अरसे बाद सुल्तान सुलेमान खान ने स्लेविनाइट्स के जजीरा रोहोड्स पर कब्ज़ा कर लिया और यह कब्ज़ा सल्तनत उस्मानिया के इख्तिताम तक बरकरार रहा। जब सुल्तान सुलेमान खान ने रोहोड्स को फ़तह किया तो उसके बेड़े जिसकी क़यादत बरबरूसा कर रहा था, उसने अफ्रीका के एक आज़ाद मुल्क अलजायर के साथ जंग छेड़ दी। इस जंग में बरबरूसा को फ़तह हासिल हुई और इसने अलजायर के शुमाली इलाक़ाजात पर कब्ज़ा कर लिया और इसे सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बना दिया। इससे सल्तनत उस्मानिया अफ्रीका में बहुत ज़्यादा ताकतवर होगी और अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क भी बन गई। सल्तनत उस्मानिया ने अपनी फ़ौजों को 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था, एक यूरोपियन फ़ौज, एक एशियन फ़ौज और एक अफ्रीकन फ़ौज। एशिया और यूरोप में सुल्तान सुलेमान खान इनकी खुद क़यादत करता था और अफ्रीका में बरबरूसा इन फ़ौजों की क़यादत करता था। सुल्तान सुलेमान खान ने अपनी फ़ौज में बहुत सी इस्लाहात की।
इन इस्लाहात का मकसद अपनी फ़ौज को बेहतर बनाना था। अपनी फ़ौज में इस्लाहात करने के बाद इसने हंगरी के साथ जंग छेड़ दी। हंगरी यूरोप का एक आज़ाद मुल्क था जिसकी सरहद ओटमन एम्पायर के साथ लगती थी। यह जंग मराज के मकाम पर लड़ी गई। इसमें उस्मानी तुर्कों की फ़ौज की तादाद 2 लाख थी और हंगरी की फ़ौज की तादाद 1,20,000 थी। इस जंग में दोनों सल्तनतों के बादशाह भी शामिल थे। इस जंग में सल्तनत उस्मानिया की फ़ौजों ने हंगरी की फ़ौज को इबरतनाक शिकस्त दी और हंगरी का बादशाह भी मारा गया। यह जंग तकरीबन 3 महीने तक जारी रही। इस जंग में सल्तनत उस्मानिया को फतह हासिल हुई और इन्होंने हंगरी पर कब्ज़ा कर लिया। हंगरी को फतह करने के बाद पूरे यूरोप को फतह करना बहुत आसान हो चुका था। पूरे यूरोप को फतह करने से पहले ऑस्ट्रिया को फतह करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि यह यूरोप के बिल्कुल वस्त में है। मरवाज की फतह के 3 साल बाद सुल्तान सुलेमान खान ने अपनी फ़ौजें ऑस्ट्रिया भेज दी। ऑस्ट्रिया एक बहुत कमज़ोर मुल्क था। सल्तनत उस्मानिया ऑस्ट्रिया पर आराम से कब्ज़ा कर सकती थी। यूरोपियन ममालिक इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि ऑस्ट्रिया फतह हो गया तो पूरा यूरोप फतह हो गया। उस्मानी तुर्कों को ऑस्ट्रिया से निकालने के लिए फ्रांस, जर्मनी, इटली मैदान जंग में आ गए। के आने से ऑस्ट्रिया की फ़ौज की तादाद तकरीबन 3 लाख हो गई। इतनी बड़ी फ़ौज के सामने उस्मानी तुर्कों की फ़ौज 1.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल थी। ये जंग तकरीबन 6 माह तक जारी रही। इसमें उस्मानी तुर्कों ने बहुत सी फतवाहत हासिल की, मगर सर्दियों का मौसम आ चुका था और उस्मानी तुर्क सर्दियों में लड़ना नहीं जानते थे। इस वजह से इन्हें हार मिलना शुरू हो गई। सल्तनत उस्मानिया ने ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में बहुत ज़्यादा बमबारी की। इस बमबारी की वजह से ऑस्ट्रिया की दीवारें टूटना शुरू हो गई, मगर हमलों में ताख़ीर की वजह से ऑस्ट्रिया ने अपनी दीवारें दोबारा तामीर कर ली। इस वजह से सल्तनत उस्मानिया वियना को फतह नहीं कर सके और ऑस्ट्रिया से वापस इस सल्तनत उस्मानिया आ गए। खलीफा सुल्तान सुलेमान खान सल्तनत उस्मानिया के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में आया तो इससे पता चला कि सफ़वी सल्तनत ने सल्तनत उस्मानिया में बहुत सी बगावतें करवाई हैं। इसने सबसे पहले इन बगावतों को कुचला। खलीफा सुल्तान सुलेमान खान ने नई फ़ौजें तैयार की ताकि वो सफ़वी सल्तनत से बदला ले सके। खलीफा सुल्तान सुलेमान खान 1534 में अपनी फ़ौज के साथ सफ़वी सल्तनत पर हमला करने के लिए निकला। इसके पास 5 लाख अफराद पर मुश्तमिल एक अजीम शान लश्कर था। सुल्तान सुलेमान खान 2 महीने का तवील सफ़र करके सफ़वी सल्तनत और सल्तनत उस्मानिया की सरहद पर पहुंच गए। जब सफ़वी सल्तनत को पता चला सल्तनत उस्मानिया उससे बदला लेने के लिए सरहद पर आ चुकी है तो सफ़वी सल्तनत ने अपनी फ़ौज सरहद की हिफाजत के लिए भेज दी। सल्तनत उस्मानिया ने इस फ़ौज को शिकस्त दी और सफ़वी सल्तनत पर चढ़ाई करना शुरू कर दी। सफ़वी सल्तनत ने बहुत सी फ़ौजें भेजी ताकि सल्तनत उस्मानिया को इसकी सरहद में आने से रोका जा सके, मगर वो सब फ़ौजें नाकाम रहीं। ये जंग तकरीबन 1.5 साल तक जारी रही और सल्तनत उस्मानिया ने इस जंग में बहुत सी फतवाहत हासिल की। खलीफा सुल्तान सुलेमान खान अल-क़ानूनी ने सफ़वी सल्तनत के बहुत से इलाके सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिए। इन इलाकों में इराक़, कुवैत, बगदाद और इनका दारुल हुकूमत तबरेज़ भी शामिल थे। खलीफा सुल्तान सुलेमान खान अल-क़ानूनी ने ये तमाम इलाके सफ़वी सल्तनत से हमेशा के लिए छीन लिए। इसके बाद इन इलाकों में इसने अमन कायम किया ताकि यहाँ जंगें दोबारा ना हो सकें। अब सल्तनत उस्मानिया एशिया में बहुत ताकतवर हो चुकी थी और मगरबी एशिया का सबसे बड़ा मुल्क भी बन चुकी थी। जब खलीफा सुल्तान सुलेमान खान अपने दारुल हुकूमत इस्तांबुल वापस आया तो इसने अपने बहरी कमांडर बारबरोसा को हुक्म दिया कि वो अफ्रीका के आज़ाद मुल्क लीबिया पर हमला कर दे, जिसे उस वक़्त तराबलस कहते थे। इसने ये हुक्म इस वजह से दिया ताकि सल्तनत उस्मानिया बहर रोम के तमाम तजारती रास्तों पर काबिज़ हो जाए। तराबलस अफ्रीका का एक ताकतवर मुल्क था। खैरुद्दीन बारबरोसा ने सुल्तान सुलेमान खान अल-क़ानूनी के हुक्म पर तराबलस पर हमला कर दिया। खैरुद्दीन बालिया और इसे सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बना दिया और ये कब्ज़ा सल्तनत उस्मानिया के इख्तिताम तक बरकरार रहा और इससे सल्तनत उस्मानिया शुमाली अफ्रीका में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई। इसके बाद वीनस के बहरी भाइयों के साथ वीनस के तमाम जज़ीरों पर हमला किया और इनमें से 24 जज़ीरों पर कब्ज़ा कर लिया और बहुत से जज़ीरों को तबाह कर दिया। ये एक बहुत बड़ी फतह थी। सल्तनत उस्मानिया खलीफा सुल्तान सुलेमान खान अल-क़ानूनी के दौर में अपने अरूज पर थी। सुल्तान सुलेमान खान ने अपने बाप से मिली हुई सल्तनत को दुगना कर दिया था। इसने सल्तनत उस्मानिया के तमाम दुश्मनों को ख़त्म कर दिया था और सल्तनत उस्मानिया में अमन कायम कर लिया था। इसके बाद खलीफा सुल्तान सुलेमान खान अल-क़ानूनी बहुत बीमार रहने लगे और आखिरकार वफ़ात पा गए। तो हम कहाँ थे? सुल्तान सुलेमान खान अल-क़ानूनी जब सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बने तो इस वक्त सल्तनत उस्मानिया का रकबा 21 लाख मुरबा किलोमीटर था।
मगर जब इनकी वफ़ात हुई तो सल्तनत उस्मानिया का रकबा 45 लाख किलोमीटर स्क्वायर था, यानी तकरीबन दुगना। सुलेमान खान अल-क़ानूनी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी जंगें लड़ी और सल्तनत उस्मानिया को इसका अरूज बख्शा। मगर इनकी वफ़ात के बाद इनका बेटा शहज़ादा सलीम सल्तनत उस्मानिया का अगला सुल्तान बना। सुल्तान सलीम एक कमज़ोर बादशाह साबित हुआ। इसे हुकूमत संभालने की अहलियत ही ना थी, चुनांचे इसने अपने तमाम इख्तियारात अपने वज़ीर आज़म को दे दिए और ये अपना वक्त अपनी बीवियों और लौंडियों को देने लगा, जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया के हुकूमती अदारे कमज़ोर होना शुरू हो। मगर सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज अभी भी बहुत ताकतवर थी। इसका बहरी बेड़ा पूरे यूरोप के बहरी बेड़े के बराबर था। इस बहरी बेड़े ने 1570 में सल्तनत उस्मानिया के नीचे बहरा रोम के अंदर जजीरा साइप्रस, जो उस वक़्त यूरोपीय मुल्क वीनस का था, इस पर हमला किया और इस पर कब्ज़ा कर लिया। जब वीनस को इस जंग में शिकस्त हुई, वीनस ने सल्तनत उस्मानिया से बदला लेने के लिए पोप से मदद मांगी। पोप ने वीनस की मदद के लिए पूरे यूरोप से एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा तैयार करवाया। इस बहरी बेड़े का नाम होली लीग रखा गया, जिसने सल्तनत उस्मानिया से वीनस की हार का बदला लेना था। इस बहरी बेड़े ने सल्तनत उस्मानिया की बहरी बंदरगाह लीपांटो पर कुछ ही अरसे बाद हमला कर दिया। इस जंग के मौका पर सल्तनत उस्मानिया के पास 270 बहरी जहाज थे और होली लीग के पास सिर्फ 220 बहरी जहाज थे। मगर होली लीग के पास 6 ऐसे बड़े जहाज थे जो सल्तनत उस्मानिया के पास नहीं थे। इस जंग में सल्तनत उस्मानिया के बहरी बेड़े ने एक तारीखी गलती की। इस बहरी बेड़े ने अपनी महफूज बंदरगाह को छोड़कर बाहर लड़ने का फैसला किया, क्योंकि उस वक़्त सल्तनत उस्मानिया के बड़े फौजी ओहदेदार छुट्टियों पर थे। इस वजह से इस बहरी बेड़े की क़यादत सोकलू महमूद पाशा और प्याली पाशा कर रहे थे। ये दोनों नातजुर्बेकार थे, जिस वजह से इन्होंने अपनी बहरी बंदरगाह से बाहर लड़ने का फैसला किया। इस जंग के शुरू में सल्तनत उस्मानिया का बहरी बेड़ा जीत रहा था, मगर कुछ ही अरसे बाद तुर्कों का बहरी बेड़ा हारने लगा, क्योंकि वो होली लीग के घेरे में आ चुका था। लगातार बमबारी और आपसी दुश्मनी की वजह से सल्तनत उस्मानिया का बहरी बेड़ा ये जंग हार गया। इस जंग में सल्तनत उस्मानिया के 250 जहाज तबाह हो गए और चंद एक दुश्मन के कब्जे में आ गए। मगर हैरानकुन तौर पर होली लीग के सिर्फ 15 जहाज तबाह हुए और चंद एक ज़ख्मी हुए। इस जंग में तुर्कों को तारीखी शिकस्त हुई थी। तारीख में तुर्कों को इससे पहले ऐसी हार का सामना नहीं करना पड़ा था। लीपांटो की बंदरगाह के करीब ये जंग हुई थी, जिसकी वजह से इस जंग का नाम बैटल ऑफ लीपांटो रखा गया। बैटल ऑफ लीपांटो की जंग में सल्तनत उस्मानिया के 30,000 सिपाही शहीद हो गए और 15,000 सिपाही होली लीग के कब्जे में आ गए। इसके अलावा तुर्कों के बहरी बेड़े पर काम करने वाले 10,000 ईसाई गुलाम भी आज़ाद हो गए। ये ईसाई गुलाम साइप्रस के जजीरे पर रहते थे। जब सल्तनत उस्मानिया ने साइप्रस पर हमला किया तो सल्तनत उस्मानिया ने इन सब को अपना गुलाम बना लिया। जब मुसलमान अल्लाह की राह में लड़ाई करते तो जंग में हारी हुई फ़ौज के सिपाहियों का अपना गुलाम बना लेते। इस जंग में तुर्कों के बहरी बेड़े के सुप्रीम कमांडर अली पाशा को एक ईसाई जंगजू ने शहीद कर दिया। इस जंग में होली लीग को फतह हासिल हुई, क्योंकि स्पेन ने अपने सबसे ज़्यादा बहरी जहाज़ भेजे थे। सल्तनत उस्मानिया अब सुपर पावर नहीं रही थी, इसकी जगह स्पेन ने ले ली थी। स्पेन अब पूरे यूरोप की सुपर पावर थी। अब बहुत से यूरोपीय मुल्क तुर्कों को कुछ ना समझते थे, क्योंकि तुर्कों का सुपर पावर स्टेटस ख़त्म हो चुका था। मगर सल्तनत उस्मानिया इतनी भी कमज़ोर नहीं थी। इसने एक बरस के अंदर अपना बहरी बेड़ा दोबारा बनाया और इसके अंदर 8 नए जहाज़ शामिल किए, जो बहरा रोम के अंदर कभी नहीं देखे गए थे। ये जहाज़ बहुत बड़े थे, किसी यूरोपीय मुल्क के पास इतने बड़े बहरी जहाज़ नहीं थे। तुर्कों के नए बहरी बेड़े ने 1574 में त्यूनस पर हमला कर दिया, क्योंकि त्यूनस कभी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। बैटल ऑफ लीपांटो में तुर्कों की हार की वजह से स्पेन ने त्यूनस पर हमला कर दिया और इस पर कब्जा किया। त्यूनस को स्पेन से आज़ादी दिलवाने और वापस सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बनाने के लिए 1574 में यह बहरी बेड़ा सल्तनत उस्मानिया से निकला। इस बहरी बेड़े में तुर्कों की फ़ौज की तादाद तकरीबन 1 लाख थी। इसके मुकाबले में स्पेन की फ़ौज की तादाद तकरीबन 20,000 थी। जब जंग शुरू हुई तुर्कों ने स्पेन को इबरतनाक शिकस्त दी। ये जंग तकरीबन 20 दिन तक जारी रही। इस जंग में तुर्कों ने स्पेन से त्यूनस वापस ले लिया और इसे वापस सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बना दिया। इस जंग में सल्तनत उस्मानिया को फतह हासिल हुई, मगर सल्तनत उस्मानिया को इसका सुपर पावर स्टेटस ना मिल सका, क्योंकि स्पेन की फ़ौज की तादाद सिर्फ 20,000 थी और सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज की तादाद 1 लाख थी। फ़ौज के इतने बड़े फ़र्क की वजह से सल्तनत उस्मानिया जीत सका। सल्तनत उस्मानिया को
ट्यूनिस के एक किले में स्पेनिश फौज का सामना करना पड़ा। इस किले में स्पेनिश फौज की तादाद तकरीबन 7000 थी। तुर्कों ने इस किले का मुहासरा कर लिया ताकि स्पेनिश फौज को पूरे ट्यूनिस से बाहर निकाल दिया जाए। यह मुहासरा 2 दिन तक रहा। तुर्कों को इस जंग में फतह हासिल हुई। तुर्कों ने स्पेन की सारी फौज को मार दिया और सिर्फ 300 सिपाही ही कैद हो सके। तुर्कों को इस जंग में फतह हासिल हुई, मगर उस्मानी तुर्कों को ऐसी अजीम फतह दोबारा हासिल ना हो सकी। इनका ज़्यादातर वक्त छोटे मोटे इलाकों को फतह करना या अपनी अजीम सल्तनत की हिफाजत करने में गुजर गया। 1574 में ट्यूनिस फतह हुआ था। इसी साल सुल्तान सलीम दोम वफात पा गए। इनकी जगह इनका बेटा शहजादा मुराद सालिस सल्तनत उस्मानिया का अगला खलीफा बना। खलीफा मुराद सालिस अपने बाप से भी ज़्यादा यार साबित हुआ। इसके हरम में तकरीबन 40 ख़वातीन थी। खलीफा मुराद सालिस ने अपने दौर में कोई फ़ौजी इस्लाहात नहीं की। पहले उस्मानी तुर्कों का जो भी खलीफा बनता वो फ़ौज में इस्लाहात करता और फ़ौज को मुनज़्ज़म करता। इसके दौर में ऐसा कोई काम नहीं हुआ था। इसके दौर में कोई जंग नहीं हुई थी, ना सल्तनत उस्मानिया बढ़ी और ना ही घटी। जब 1595 में इसकी वफ़ात हुई तो इसके 130 बेटे और अनगिनत बेटियां थीं। मुराद सालिस की वफ़ात के बाद इसका बेटा शहजादा मोहम्मद सोएम अगला खलीफा बना। खलीफा मोहम्मद सोएम ने अपने 129 भाइयों को तो नहीं मारा, मगर 19 ऐसे भाइयों को ज़रूर मारा जो बगावत कर सकते थे। इसको अपने बेटे महमूद के ऊपर शक गुजरा कि वो इसके खिलाफ बगावत कर सकता है, तो इसने अपने दौर ही में इसको कत्ल करवा दिया। खलीफा मोहम्मद सोएम के दौर में पहली बार तुर्क फौज ने बगावत कर दी, क्योंकि वो जानिसरीज को गैर मुल्की समझते थे और इनके बढ़ते हुए असर और रसूख को अपने इक़्तिदार के लिए खतरा समझते थे। तुर्कों की इस बगावत को ख़त्म करने के लिए जानिसरीज ने इनकी बैरिक्स को आग लगा दी, जिसमें हज़ारों सिपाही शहीद हो गए। जो सिपाही बचे वो सल्तनत उस्मानिया के मुख्तलिफ हिस्सों में चले गए और लूट मार करने लगे। बगावत तो ख़त्म हो गई, मगर इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये निकला कि जानिसरीज पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गए। इस्तांबुल में बगावत तो ख़त्म हो गई, मगर जिन जानिसरीज ने इस बगावत को ख़त्म किया वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गए। इतने ताकतवर कि वो सल्तनत उस्मानिया के अंदर तजारत करने लगे, कारोबार शुरू करने लगे, बड़ी बड़ी जागीरें खरीदने लगे, जायदादें बनाने लगे। जानिसरीज के इस बढ़ते हुए असर और रसूख को देख के आम आवाम भी चाहती थी कि वो भी जानिसरीज की फ़ौज में शामिल हो, मगर इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जानिसरीज की फ़ौज में सिर्फ यूरोपीय ईसाई बच्चों को ही शामिल किया जाता था। 17वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया का ये हाल हो चुका था कि जानिसरीज फ़ौज में शामिल होने के लिए लोग बड़ी बड़ी रिश्वतें देने लगे। आमतौर पर सल्तनत उस्मानिया की जानिसरीज फ़ौज की तादाद 30 से 35 हज़ार हुआ करती थी, मगर जब से रिश्वतें शुरू हुई, सिफारिशें शुरू हुई, इनकी तादाद 2,05,000 से तजावुज़ कर चुकी थी। जैसे जैसे इनका कारोबार बढ़ता गया वैसे वैसे इनकी तादाद भी बढ़ती गई। ये सल्तनत उस्मानिया के हालात थे कि खलीफा मोहम्मद सोएम की वफ़ात हो गई। खलीफा की वफ़ात के बाद इसका बेटा शहजादा अहमद सल्तनत उस्मानिया का अगला खलीफा बना। खलीफा अहमद ने अपने भाइयों को मारने वाली ज़ालिमाना रस्म को ख़त्म किया और ऐलान किया जब खलीफा मरेगा तो इसका बड़ा बेटा अगला खलीफा बनेगा। इससे सल्तनत उस्मानिया का ये नुकसान हुआ कि पहले सल्तनत उस्मानिया में जो भी खलीफा मरता था कि उसके वरसा के दरमियान जंगें होती थी और जो जंग जीता था वही अगला खलीफा बनता था। इससे सल्तनत उस्मानिया में बगावतें कम होती थी या होती ही नहीं थी। इस कानून को ख़त्म करने की वजह से खलीफा के वरसा के दरमियान हुकूमत में ज़्यादा असर और रसूख पाने की ख्वाहिश शुरू हो गई। हुकूमती महलात में साजिशें शुरू होने लगी। मलकाएँ अपने बेटों को खलीफा बनाने के लिए हर जायज़ नाजायज़ काम करने लगी। खलीफा अहमद अव्वल ने एक और बहुत बड़ी गलती की। इन्होंने अपने शहजादों को हुकूमती तरबियत देने की रस्म भी ख़त्म कर दी। पहले उस्मानी खलीफा अपने शहजादों को हुकूमती तरबियत देने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का गवर्नर बनाते ताकि उन्हें हुकूमती मामलात की समझ बूझ आ जाए। जब ये रस्म ख़त्म हो गई तो उस्मानी खलीफाओं के बेटे शहजादे शहजादियाँ महलों में रह कर ही तरबियत पाते थे। इनकी तरबियत ख्वाजा सरा, बांदियाँ या इनकी माएँ करती थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि इन शहजादों को हुकूमती मामलात की पेचीदगी की समझ ना आ सकी, जिससे सल्तनत उस्मानिया का अरूज ज़वाल में तब्दील हो गया और सल्तनत उस्मानिया आस्ता आस्ता टुकड़े टुकड़े होती गई।